Good morning students, welcome to maths class of standard 4. I am Mahfouz sir. We are study to chapter 1 numbers beyond 9999 9999 से आगे की संख्या. This is the video number 1. Children, can you imagine your life without numbers? Think. Probably not. Why? Because we are using number in our daily life everywhere. Like in school, using roll numbers, registration number. Similarly, our mobile numbers, our Aadhaar card numbers, etc. It is very necessary to learn our numbers. Students, you have already studied numbers, 1-digit numbers and 2-digit numbers. So let's start. 1-digit number are 1 to 9. If we add 9 plus 1 is equal to 10, it is a 2-digit number. 2 digits number, and the 2-digit numbers are 10 to 99. If we add 99 plus 1 is equal to 100, 3-digit number. It is a 3-digit number, and 3-digit numbers are 3 digits numbers are 100 to 999. 3-digit numbers are 100 to 999. If we add 999 plus 1 is equal to 1000, 4-digit number. It is a 4 digits number. 4-digit numbers. 4-digit numbers are 1000 to 9999. And if we add 9999 plus 1 is equal to 10,000, it is a 5-digit number. 5 digits number. 5 digits numbers are 10,000 to 99,999. The smallest 1-digit number is 1. Greatest 1-digit number is 9. The smallest 2-digit number is 10. Greatest 2 digits number is 99. The smallest 3 digits number is 100. Greatest 3 digits number is 999. The smallest 4 digits
number is 1000, greatest 4 digits number is 9999. Smallest 5 digit number is 10,000. Greatest 5 digit number is 99,999. Smallest 6 digit number is 1 lakh. Greatest 6 digit number is 9,99,999. Smallest 7 digit number is 10 lakhs. Greatest 7 digit number is 99,99,999. Students, pause this video and note it in your notebook. In these chapters, I want to introduce you 4 terms of numbers: natural numbers, whole numbers, even numbers and odd numbers. Natural numbers. Counting numbers are called natural numbers. It is represented as n and 1, 2, 3, 4, 5 dash 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 so on. Natural numbers. Whole numbers. If we add 0 to natural numbers is called a whole numbers. It is represented as W, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dash 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 so on. Counting numbers are called natural numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dash 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 so on is called natural numbers. Whole numbers. Numbers 0 and other counting numbers are called whole numbers. It is represented as W. Example 0, 1, 2, 3, 4, 5 dash 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 so on. Whole numbers. Whole numbers. Natural numbers में 0 को include कर देने से वो whole number कहलाता है. Students, you can pause this video and note it in your notebooks. Even number. A number which is completely divisible by 2 is called even number, or a number ending in unit place 0, 2, 4, 6 and 8 is called even number. Example 2, 8, 26, 300, 1246. मैंने आपको बताया कि जिस संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह इवन नंबर कहलाता है. जैसे कि 1246 यह हमारा नंबर है. इसे हम कैसे जानेंगे कि ये हमारा इवन नंबर है या ऑड नंबर है? तो मैंने बताया कि यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस हम यहाँ पर देखना है कि यूनिट प्लेस इसका ये है, और यूनिट प्लेस पे इस नंबर में से कोई एक नंबर हो गया. जैसे कि यहाँ पर 6 है, तो 6 है तो ये हमारा क्या हो गया? इवन नंबर हो गया. जैसे कि इस नंबर को देखेंगे, यहाँ पर हमारा 300 है और इस 300 के यूनिट प्लेस पे क्या है? 0 है. सो इट इज कॉल्ड इवन नंबर. And odd numbers, a number which is not exactly divisible by 2 is called odd number, and a number ending in unit place 1, 3, 5, 7 and 9 is called odd number. For example 3, 43, 231, 799. जैसा कि किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 1, 3, 5, 7 और 9 होता है तो वो हमारा ऑड नंबर कहलाता है. जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे 799 हमारा एक नंबर है, इसका यूनिट प्लेस पे क्या है? हमारा 9 है. सो इट इज़ कॉल्ड ऑड नंबर. एंड 231 इसके यूनिट प्लेस पे 1 है, इसलिए यह ऑड नंबर कहलाता है. 43 इसके यूनिट प्लेस पे 3 है, इसलिए यह क्या कहलाएगा? हमारा ऑड नंबर कहलाएगा. You can pause this video and note it in your notebooks. Students, we are starting to chapter 1, exercise 1.1. The question number 1 is saying that represent the following numbers on the abacus. हमें जो नंबर्स यहाँ पर दिया हुआ होता है उस नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होता है इस अबैकस में. जैसे कि यहाँ पर देखेंगे 1s, 10s, 100, 1000s, 10,000, यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है वो 63,842 है और इसको हमें अबैकस में रिप्रेजेंट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 1s कॉलम में 2 है तो 2 हमें बीट्स को ड्रॉ करना है. 1, 2. हेयर इज द 10th प्लेस पे हमें क्या 4 है तो हमें 4 बीट्स को ड्रॉ करना. 1, 2, 3, 4. और 100 प्लेस पे हमारा 8 है तो 8 कॉलम में
100 कॉलम में हमें 8 बीट्स को ड्रॉ करना, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से थाउजेंड्स प्लेस पे 3 है तो हमें 3 बीट्स को ड्रॉ करना है, 1 2 3। एंड 10,000 प्लेस पे 6 है तो 1 2 3 4 5 6। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि 63,842 को मैंने किस तरह से अबैकस में रिप्रेजेंट किया, इसी तरह से आपको भी रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पर देखेंगे, रीड करेंगे हम इसे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000, लाख। और यहाँ पर लाख पे यहाँ पर 9 है तो हमें 9 बीट्स को बनाना है। लाख कॉलम्स ये है तो हमें इस पे 9 बीट्स को बनाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और 10,000 प्लेस पे 0 है तो छोड़ देना है, और 1000 प्लेस पे 1 है तो 1 बीट्स को बनाना है, और 100 प्लेस पे 6 है तो 6 बीट्स को बनाना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। और 10 प्लेस पे 7 है तो 7 बीट्स को बनाए, 1 2 3 4 5 6 7। और 1 प्लेस पे 5 है तो 5 बीट्स को ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5। इस तरह से हमारा 9,01,675 को मैंने अबैकस में रिप्रेजेंट किया। इस तरह से आप भी इसे करें। राइट द नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय द अबैकस। अबैकस में जो बीट्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है उसको नंबर्स में लिखना है। तो राइट साइड से हमें वंस कॉलम से है अरेंज करते जाना, लिखते जाना है। वंस कॉलम में 3 बीट्स बना हुआ है तो 3 को लिखेंगे। फिर टेंस कॉलम में 1 2 3 4 5 बीट्स बना हुआ है तो 5 लिखेंगे। 100 कॉलम में 2 बीट्स बना हुआ है तो 2 लिखेंगे। थाउजेंड्स कॉलम में 1 2 3 4 5 6 7 7 बना हुआ है तो 7 को लिखेंगे। और 10,000 कॉलम में 1 2 3 4 5 है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। और लाख कॉलम में कुछ बीट्स नहीं बना हुआ है तो इसको एज यूजुअल छोड़ देंगे। अब यहाँ पर जो नंबर्स आपका हो गया वो 57,253। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी में भी यहाँ पर वंस कॉलम में 4 बीट्स बना हुआ है तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। और टेंस कॉलम में 5 बीट्स बना हुआ है तो 5 लिख देंगे। और 100 कॉलम में 1 बीट्स बना हुआ है तो 1 लिखेंगे। और थाउजेंड्स कॉलम में 6 बीट्स बना हुआ है तो 6 लिखेंगे। 10,000 कॉलम में 3 बीट्स बना हुआ है तो 3 लिखेंगे। और लाख कॉलम में 3 बीट्स बना हुआ है तो ऑलरेडी हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब इसे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम कॉमा पुट करेंगे। तो इस तरह से 3,36,154 को नंबर्स में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नंबर्स नेम इन द इंडियन नंबर सिस्टम्स। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ये जो नंबर दिया गया है इसको इंडियन नंबर ऑफ सिस्टम में लिखना है। जबकि यहाँ पर देखेंगे वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, 14,000 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 14,200 and 69। क्वेश्चन नंबर 3 का बी, वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 2 लाख, 2 lakhs, 34,000, 34,000 and 75। 4, राइट द नंबर्स नेम इन द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स। ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स में लिखना है। वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000 एंड 100,000। सो 900, 16,000, 752, 752।
Question number 2. Ones, tens, hundred, thousands, 10,000s, 100,000s and million. Again, ones, tens, 100,000s, 10,000s, 100,000s and million. 5 million. 5 millions, 700, 31,000, 684, 684. Question number 5. Write the place value of 5 in the following numbers. क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित नंबर में से 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है। अब ये नंबर देखेंगे 6,53,127 इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में है। अब हमें इस 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो इस 5 का प्लेस वैल्यू निकालने का दो प्रोसेस है। एक तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 5 लिखेंगे और 5 के बाद जितना डिजिट होता है उतना डिजिट का वो काउंट करके उतने टाइम 0 पुट कर देते। 1 2 3 4 5 के बाद 4 टाइम डिजिट है तो 4 टाइम हमें 0 पुट करना है। तो अब ये 4 टाइम 0 पुट करने के बाद ये नंबर्स का वैल्यू हो जाता है वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, दैट मीन्स 50,000। आप इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर आप डायरेक्ट इसको इज इक्वल टू का साइड सामने दे करके यहाँ पर 50,000 लिख देंगे। आप वर्ड में लिखना चाहे तो यहाँ पर 50,000 आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000 and 100,000, 590,783 इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में ये क्वेश्चन नंबर सी दिया हुआ है। अब हमें इसका प्लेस वैल्यू निकालना है। तो इसका प्लेस वैल्यू निकालने का भी दो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर डायरेक्ट आप इसका नंबर लिख सकते हैं 500,000 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा आप ऐसे लाइनिंग खींच करके 5 लिखेंगे और 5 के बाद जितना डिजिट होता है उतना डिजिट को काउंट करके उतना टाइम 0 पुट कर सकते हैं उस डिजिट के प्लेस पे। 1 2 3 4 5 टाइम है तो 5 टाइम 0 हमें पुट करना है। अब ये हमारा क्या हो गया 500,000 हो गया। 500,000 इसका प्लेस वैल्यू हो गया। So students, practice this exercise 1.1 in your notebooks, and if you have a problems of any question in this exercise, you will ask me in the comment box.